Hello student, welcome to the next video of Business Studies class 11, and this is the lesson 3, that is public, private and global enterprises. So this is the last topic of this lesson, and now in this lesson we are going to study about the changing role of public sector. So student, one very important thing that these public sector enterprises, they are base of economic development of country. You know how it play this important role, either by direct participating in economic development or by acting as catalyst. Like public enterprises, they either they directly set up the business, or to promote these private industries or business to run smoothly, they provide infrastructure such as good transport, रोड टू अदर सेक्टर्स. क्योंकि पता है ये रोड बनवाना, फिर ब्रिजेस बनवाना, ये सब में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, और इतना टाइम और पैसा प्राइवेट कंपनियां नहीं देंगी. ठीक है, इसमें आपका जो अर्न करना, आप जब शुरू करते हो, प्रॉफिट अर्न करना शुरू करते हैं, वो एक टाइम, काफ़ी टाइम लग जाता है. और प्राइवेट सेक्टर का क्या काम होता है, वो अपना इंडस्ट्री सेटअप करती हैं और प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं. वो इतना लंबा, इतना जेस्टेशन पीरियड इसमें होता है कि वो इतना वेट नहीं करेंगे, इतना लॉन्ग वेटिंग पीरियड होता है, वो इतना प्राइवेट सेक्टर वेट नहीं करेंगे. Therefore, these private sector, they are unwilling to invest in such project. और जो गवर्नमेंट है वो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके शहर का होगा, उतना ही आपका जो कंट्री है, आपका जो सिटी है, वो उतना ही डेवलप करेगा. ठीक है. सो क्या ऐसा लगता है क्या कि ये स्टार्टिंग से ऐसा ही रहा होगा, मतलब पब्लिक सेक्टर ऐसा ही इतना ग्रो किया होगा? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि देखो कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स थे. एंड व्हाट वर द शॉर्टकमिंग्स? लाइक एक्सेसिव ओवरहेड्स, ओवर स्टाफिंग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, इनएफिशिएंसी, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये सारे कुछ शॉर्टकमिंग्स या लिमिटेशंस थे जो पब्लिक सेक्टर में था. ये क्यों था? क्योंकि देखो सरकारी होता है ना, एक दिमाग में सरकारी नौकरी है, 60 साल के पहले रिटायर नहीं होना, तो हमें अब काम जैसा भी करें हमें सैलरी आनी है. तो ये सब चीज़ें कुछ इसकी वजह से क्या होता है, आपकी इफिशियंसी नहीं रह जाती है. बहुत आप मीन्स प्रमोशन भी आपको एक या तो सीनियरिटी के बेसिस में मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, आप बहुत आप मोटिवेट नहीं होते हो काम करने के लिए. ठीक है, कैसी हमें प्रमोशन तो मिल ही जाना है, तो क्या ज़रूरत है इतना अपना 100% देने का. तो ये सारी चीज़ें आने लगी थी. सो now what happens ki means public sector become more advanced, working neck to neck with private sector. Earlier this was not so, but now these started happening. So public sector in India was created to achieve twofold objective, or two types of objective. One was to speed up economic growth of the country, as I told you, क्योंकि economic growth तभी होगा जब आपके infrastructure आपके country का, आपके city का अच्छा होगा. And second is to achieve more equitable distribution of income and wealth among people. कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, कोई बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होगा. Then only this will be means the second reason is to achieve equitable distribution of income and wealth among people. So these are the twofold objectives. So let's see the points of role of public sector. So there are almost 6 points. So the first one is development of infrastructure, then regional balance, economies of scale, check over concentration of economic power, import substitution, government policy towards the public sector since 1991. So there was certain government policy also for the public sector, and what were they? These were like reduction in number of industries reserved for public sector, then disinvestment, memorandum of understanding, that is MOU, and restructural and revival. So now student, let's see all the points one by one. So the very first point is development of infrastructure. So the duty of development of basic infrastructure was assigned to public sector because these infrastructure require large capital and delayed profit. So according to this point, as we know that these infrastructure, they require large capital, and these private company,
they neither has zeal nor capacity to invest in the development of capital intensive sector. So public sector has good record. Public sector, they provide these infrastructure. And what are the infrastructure, student? Infrastructure like transport, communication, power, irrigation. ओके और किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर होता है तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आपके कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी कंट्री डेवलप करेगी. एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड जैसा अभी हमने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कैपिटल इंटेंसिव होते हैं ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और प्रॉफिट भी बहुत देर से मिलता है, तो प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल इसमें हाथ नहीं डालते हैं. एंड इट वाज ओनली द गवर्नमेंट which made huge capital investment to develop infrastructure facilities because such projects they demand long gestation period and lesser return on investment. Okay, like rail, road, sea, air transport was the responsibility of the government. Clear? Then comes your regional balance. Earlier, most of the development was limited to few areas for providing employment to the people and for accelerating the economic development of the backward areas. Many industries were set up by public sector in those area. Means regional balance, balancing बनाने के लिए क्या हुआ उसके बाद फिर the government is responsible for developing all regions and मीन्स जो भी रीजनल इम्बैलेंसेज हैं उनको हटाने का, कि एक ऐसा ना हो एक जगह बहुत डेवलप कर जाए और दूसरा शहर बहुत अंडर डेवलप हो जाए, तो ये चीज़ों को हटाने के लिए गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वाज, क्योंकि इंडस्ट्रीज देखो उसी जगह पे लगाई जाएंगी जैसा अभी हमने बताया कि जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो गवर्नमेंट का क्या काम था, जो भी अंडर डेवलप एरिया होता था वहाँ पे वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे ताकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज अपना इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर सकें, सो दैट वहाँ के जो लोग हैं वो बैकवर्ड एरियाज वहाँ के लोगों को भी वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, सो दैट जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंसिंग करने के लिए. नाउ द थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. In certain industries, huge capital and large base are required to function economically. Such areas were taken up by public sector. So student, you know, where large scale industries are required to be set up, it require huge capital. So the public sector, they step in to take the advantages of economies of scale. Electric power plants, natural gas, petroleum, telephone industries, these are few example of public sector setting up large scale units. And these industries, they require larger base to function economically, and it was only possible with government resources and mass scale production. Now the fourth point is check over concentration of economic power. So these enterprises were also established to provide competition to private sector and to check their monopolies and restrictive trade practices. So you know student, these public sector, they were also set up so that these was happening that these private sector, they were having monopoly. सो इनको कंपटीशन देने के लिए और इनकी मोनोपली न रह जाए, क्योंकि क्या होता है जब आपकी मोनोपली होगी, जब आप ही होंगे, कंपटीटर नहीं है कोई, तो आप जो भी प्रोड्यूस करोगे, जो कस्टमर है दे आर सपोज टू परचेज योर प्रोडक्ट ओनली. आप उसको हो सकता है कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स हो, उसको भी आप बहुत ज़्यादा रेट पे सेल कर सकते हैं. सो द पब्लिक सेक्टर दे एक्ट एज अ चेक ओवर द प्राइवेट सेक्टर. सो इनको कंपटीशन प्रोवाइड करने के लिए भी ये इन इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश किया गया था. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. सो ड्यूरिंग द second and third 5-year plan period, Indian government was aiming to be self-reliant. It involved in heavy engineering and set up several public sector companies which played an important role in increasing exports of the country. So student, first let us know the meaning of import substitution. So what does import substitution means? कि import का कोई substitution, कोई एक substitute ढूंढना.
तो पहले क्या होता था कि जब बड़ी बड़ी मशीनरी होती थी, हैवी इंडस्ट्रीज में मशीन जो लगती थी, वो हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे. बट आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या सोचा, सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर बनने का. देखो मोदी जी भी कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनिए, तो वही यहाँ पे सेल्फ रिलायंट कि अब हम बाहर से, और एक ये भी रीज़न था कि फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया था, तो इस वजह से भी क्या हुआ कि आप सेल्फ रिलायंट बनना था, इसलिए इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन क्या ढूंढा गया कि अब जो हैवी इंजीनियरिंग सेटअप, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी जो हैवी मशीन्स थे, वो खुद से वहाँ पे बनाने लग गए, और इसकी वजह से क्या हुआ, अब हम इंपोर्ट की जगह इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ गया. क्लियर, दिस इज व्हाट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज. गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर since 1991. Government of India has introduced 4 major reforms in the public sector in its new economic policy 1991. And student, this new economic policy or NEP 1991 is also known as new industrial policy. So what happened after 1991? Certain changes were made. So what were they? They were like reduction in the number of industries reserved for public sector. जो public sector के लिए पहले इंडस्ट्री रिजर्व की गई थी, उनमें कुछ रिडक्शन हुए. दिस नंबर इज रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8 and to 3 only in 2001. These 3 industries are atomic atomic energy, arms and rail transport. So student, you know, first there were 17 industries which were reserved for public sector, फिर ये 17 से 8 तक आए, और अब ये 17 से 8 पे आने के बाद 2001 में अब वो सिर्फ 3 बचे हैं, और वो 3 कौन से हैं, वो हैं एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट. सो मीन्स these 3 industries means after 2001 the private sector they could enter in all the areas except these 3. in ये जो 3 इंडस्ट्रीज हैं, एटॉमिक, आर्म्स एंड रेल, इनके अलावा बाकी हर जगह प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसइन्वेस्टमेंट. इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक. It was expected that this would lead to improved managerial performance and better financial discipline. So student, first of all let's see the meaning of equity disinvestment. So disinvestment में क्या होता है कि जो public sector के जो equity shares होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक को सोल्ड किए जाते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेटाइजेशन. ओके, तो और ये प्राइवेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? देखो कई जगह क्या था कि मोनोपोली थी, लाइक टेलीकॉम सेक्टर आपका है, ठीक है, तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ, कंज्यूमर्स दे हैव मोर चॉइसेस. अब आपके पास चॉइसेस बहुत सारे हो जाते हैं ना, प्राइसेस भी उसकी बहुत लोअर प्राइसेस हो जाता है, ये भी रीजन हो जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मोनोपोली होगी तो आप एज अ कस्टमर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहता, और जो कंपनी होती है वो भी अपनी मनमानी तरह से काम करती है, जैसे क्योंकि कॉम्पिटिटर नहीं है उसका, ठीक. बट डिसइन्वेस्टमेंट के बाद से क्या हुआ कि कई सेक्टर्स में मोनोपोली खत्म हो गई. क्लियर. Then the next point is Memorandum of Understanding, MOU. In short, it is said to be MOU. So under this, government lays down performance target for public sector and gives greater autonomy to hold the management, but held accountable for the specified result. Means अब क्या था, अब गवर्नमेंट क्या करी, इसके अंडर में क्या किया कि एक टारगेट पब्लिक सेक्टर को दिया, और आपको ऑटोनॉमी भी है कि आप अपने तरह से उसको, आप जो टारगेट आपको मिला है उसे आप फुलफिल करिए, और उसके लिए यू विल बी अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफाइड रिजल्ट. अगर हमने दिया है कि सपोज आपको सपोज एक एग्जांपल हम ले रहे हैं दैट यू हैव टू कंप्लीट 10 यूनिट ऑफ यू हैव टू मैन्युफैक्चर 10 यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये आपका टारगेट है. अब उस टारगेट को किस तरह से अकम्प्लिश करना है, किस तरह से करना है, दे हैव गॉट ऑटोनॉमी टू डू दैट. पर जो भी स्पेसिफाइड रिजल्ट है, अगर 9 यूनिट ही कंप्लीट हुआ है तो दे विल बी अकाउंटेबल फॉर द सेम. आप यू विल बी आंसरेबल, क्यों 9 यूनिट ही हुआ है, क्यों
अंडर रिजल्ट क्यों है, आप और ज़्यादा भी दे सकते थे, ठीक है, ज़्यादा है कम है जो भी है, दिस अकॉर्डिंग टू दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर एक टारगेट सेट किया जा रहा है, ऑटोनॉमी was given and the management for the management, and they will be accountable for the specified result also. Then the last point is restructural and revival. All public sector SIC units were referred to Board of Industrial and Financial Reconstruction, and Board of Industrial and Financial Reconstruction, in short it is said to be BIFR. Units which were potentially viable were restructured and which could not be revived were closed down by the board. Means अब इसमें क्या था कि जो भी restructure and revival मतलब आप फिर से अगर कोई यूनिट है जो अच्छा नहीं काम कर रही तो उसे रीस्ट्रक्चर करके देखते हैं, शायद फिर से अच्छा काम कर सके, या हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें उसे रिवाइव वो फिर से हो जाए। लेकिन अगर कोई जो यूनिट्स एकदम सिक यूनिट्स थी जो अब जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं बाकी थी उनको क्लोज डाउन करना ही सही डिसीजन होगा। So student, this is all about the changing role of public sector, and this was the last video of this lesson 3. And if student you have any problem, you can ask me through comment box, and please do like, share and subscribe the video. Thank you.